POSSESSIVE. Possessive pronoun. Possessive pronoun लिख रहे हैं? Possessive pronoun लिखिए. Possessive pronoun shows. Possessive pronoun shows, SHOWS, shows the belongings. Possessive pronoun shows the belongings. Possessive pronoun shows the belongings. Possessive pronoun shows the belongings. लिख लिए? हो गया सभी का? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब देखिए इसको समझिए. पजेसिव प्रोनाउन किसको कहता है? पजेसिव प्रोनाउन ऑलवेज शोज बिलोंगिंगनेस, पोजीशन. पजेसिव वर्ड जहां पर भी दिखेगा, दैट द मीनिंग ऑफ वर्ड इज पोजीशन, बिलोंगिंग. उससे बिलोंग्स करता है, मेरे से बिलोंग्स करता है. जैसे दिस मार्कर इज माइन, दिस इज माई मार्कर, सो द पोजीशन ऑफ दिस मार्कर इज माइन. ये मेरे को बिलोंग करता है. दिस इज हिज कॉपी, दैट इज her chair, that is her bottle. He is her father, she is his mother. तो ये सब जो हम लोग बोलते हैं वो क्या है? ये उसके पापा है, वो उसकी मम्मी है, ये उसका सामान है, ये मोहन का बैग है, ये राहुल का साइकिल है. तो all these shows belongingness, and belongingness shows possession, possessive pronoun. Is that clear? Yes, ma'am. तो इसका एग्जाम्पल होगा हिज, हर, देयर. आ रही है बात समझ में? इसका, उसका, हिज बैग, हर चेयर, देयर हाउस. आ रही है बात समझ में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. लिखिए, लिख लीजिए. Yes, ma'am. हिज, हर, इट्स, देयर्स. लिखिए हिज. हर में हर्स होगा, HERS. प्रोनाउन जब भी लगता है तो लास्ट में एस होता है. हिज, हर्स, देयर्स, इट्स. लिख लिए सब लोग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So possessive pronoun shows the possession, the belongingness of anything, and that is possessive pronoun. His, hers, its, theirs, anything. Now next one is relative pronoun. See, relative pronoun and interrogative pronoun. Both these pronouns are very much similar, but don't get confused in all this. Ma'am, your voice is not coming. Yes, ma'am. And your video is paused. Am I audible? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. Okay. So next is relative pronoun. Don't get confused with relative pronoun and interrogative pronoun. Both are
little bit similar, but that are not at all similar. Okay, थोड़ा बहुत मिलता जुलता है लेकिन similar बिल्कुल भी नहीं है. Interrogative pronoun is always associated with in a sentence is always associated with asking question, and relative pronoun is always associated to relate something. Relative pronoun को हम लोग हमेशा relationship के लिए यूज करते हैं जहां हमें relationship शो करना होता है, ठीक है. लेकिन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को वी ऑलवेज यूज टू आस्क क्वेश्चन. अब बोलेगा कि मैम दोनों सेम क्यों है? बिकॉज इन बोथ द सेंटेंसेस इधर it is interrogative pronoun or relative pronoun, we will use WH question, WH who, how, why, what, where, when. But in interrogative question all these words will be associated, will be used to ask question, but in relative pronoun it will be used as to show the relation. For example, what is your name, where are you going? All these are interrogative sentence, but the example of relative pronoun is this is the boy, the boy who got first position in the class is my brother. वो लड़का जो क्लास में फर्स्ट पोजीशन जिसको मिली है वो मेरा भाई है. तो यहाँ पे जो हम लोग वर्ड who यूज कर रहे हैं, यहाँ पे जो हम लोग वर्ड who यूज कर रहे हैं, it is not using as asking question, but it is using as to relate with the boy, to relate with the boy. वीडियो सबका ऑफ है, मैंने सबको बोला अपने अपने वीडियो को ऑन करने. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में अगर हु, whom यूज होता है, why, what कुछ भी यूज होता है तो वो क्वेश्चन आस्किंग के फॉर्म में यूज होता है. लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन में अगर यही वर्ड यूज होंगे तो वो रिलेशनशिप शो करने के लिए यूज होंगे. फॉर एग्जाम्पल अभी जैसा मैंने बताया, द बॉय हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास इज माई ब्रदर. वो लड़का जो क्लास में फर्स्ट आया है वो मेरा भाई है. तो यहाँ पे who वर्ड जो यूज हो रहा है that is showing the relationship with the boy. Is that clear to all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so don't get confused with interrogative pronoun and relative pronoun. नहीं होइएगा confused. No, ma'am. लिखिए relative pronoun dash. Relative pronoun dash. Relative pronoun is used relative pronoun is used तो जी ले हाँ. relative pronoun is used to show the relationship, to show the relationship, to show the relationship relative pronoun is used to show the relationship मैं रिलेशन the- के आगे relationship with the subject, with the subject of the sentence, with the subject of the के बाद with the subject, with the subject, with the subject of the sentence, of the sentence, of the sentence. तो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन में जो भी वर्ड यूज होंगे हु, व्हाट, व्हाई, वो उसी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट उसमें यूज हुआ है, जो नाउन उसमें यूज हुआ है, उसी को शो करने के लिए, उसी को रिलेट करने के लिए वहां पे रिलेटिव प्रोनाउन यूज होता है. जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था, एक और एग्जांपल सुनिए. द प्लेस वेयर यू आर गोइंग टुमारो इज माय बर्थ प्लेस.
तो यहाँ पे where जो यूज हुआ है, it is not using as a form of asking question, but it is using to correlate with the place. उस प्लेस से रिलेट करने की कोशिश की जा रही है। वो प्लेस जहां आप कल जा रहे हो वो मेरा जन्मभूमि है, इज माई बर्थ प्लेस। उस प्लेस से रिलेट करने के लिए वहां पे वेयर यूज हो रहा है, मीन्स वेयर इज यूजिंग एज जहां, नॉट कहां, मीन्स not as asking question but to correlate with the subject, और subject वहां पे क्या है, the place। place को indicate करने के लिए, place से relationship show करने के लिए there we are using where। is that clear? मैम द प्लेस वाला फिर से एक बार एग्जांपल बोल दीजिए। the place where you are going tomorrow, the place where you are going tomorrow is my birthplace, is my birthplace। जहां, उस जगह पे जहां आप कल जा रहे हो वहां से मेरा क्या रिलेशन है, तो वहां से मेरा यही रिलेशन है कि वो मेरा बर्थ प्लेस है। आई बात समझ में? Yes, ma'am. यस मैम। ओके, नाउ नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अच्छा, रेसिप्रोकल ये वर्ड के बारे में आपने कभी सुना है? ये जो वर्ड यहाँ पर है ये रेसिप्रोकल, मुझे लगता है आपने मैथ्स में सुना है इस वर्ड के बारे में, है ना? नो मैम। नहीं सुना है? रेसिप्रोकल वर्ड आपने मैथ्स में नहीं सुना है? हम लोग बोलते हैं कि 2/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, बताइए। 2/3 का 3/2, वेरी गुड। तो रेसिप्रोकल मतलब होता है उल्टा, अपोजिट, है ना? 2/3 का अपोजिट हो जाएगा 3/2। मतलब होते यही लोग दोनों एक दूसरे के साथ हैं, होते यही लोग दोनों एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन अपोजिट रूप, हाँ अपोजिट होते हैं एक दूसरे से, है ना? मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, चाहे जैसे भी जुड़े हुए रहे, है ना? यस, तो रेसिप्रोकल मतलब होता है उल्टा, एक दूसरे का उल्टा। तो यहाँ पर क्या होता है, लेकिन इंग्लिश के रेसिप्रोकल प्रोनाउन की बात आप करेंगे तो यहाँ भी मतलब वही होता है, एक दूसरे से जुड़े रहना, लेकिन यहाँ पे मतलब उल्टा नहीं होता है। लेकिन अगर आप इसको समझिएगा तो ये सेंस वही देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो होता है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलती हूँ कि मैंने 2 लड़कियों को एक प्रोजेक्ट बनाने का काम दिया है, मैंने 2 लड़की को एक प्रोजेक्ट बनाने का काम दिया है कि कल आपको एक पॉट तैयार करके लाना है, योर पॉट शुड बी वेरी मच डेकोरेटेड, और हर एक गर्ल्स को मैंने 2-2 के ग्रुप में बांट दिया। तो वहां पे आप दोनों क्या करिएगा, एक दूसरे की हेल्प करिएगा, यू विल हेल्प ईच अदर। तो वहां पे ईच अदर वाली जो वर्ड आ रही है, आप लोग अपने अपने हेल्प नहीं करिएगा, आप लोग दोनों एक दूसरे की हेल्प करिएगा। तो वहां पे रेसिप्रोकल वर्ड यही है, ईच अदर, एक दूसरे को आप लोग हेल्प करिएगा, आप उनका हेल्प करेंगे और वो आपका हेल्प करेंगी। आई बात समझ में? Yes, ma'am. यस मैम। यस, वीडियो सबका ऑफ है, सबका कैमरा मुझे ऑफ दिख रहा है, किसी का कैमरा ऑन नहीं है, 1-2 बच्चे को छोड़ के। ओके, तो रेसिप्रोकल मतलब बात समझ में आई? यस मैम। अच्छा, तो ये तो जो मैंने एग्जांपल आपको समझाया वो 2 के लिए था कि जब 2 के लिए हम लोग यूज करेंगे तो ईच अदर यूज कर लेंगे, ईच अदर। लेकिन मान लीजिए कि अगर मैंने 10 के ग्रुप में, आपके 10 के ग्रुप में आपके हर एक ग्रुप को बांटा है, आपके क्लास के हर एक ग्रुप को मैंने 10-10 स्टूडेंट का ग्रुप बनाया है, तो वहां पे आप लोगों को एक दूसरे की मदद करनी है, तो वहां पे आप क्या है यूज करोगे, वहां पे वर्ड आप क्या यूज करोगे, बताओ? 2 के लिए तो हम लोगों ने कर दिया कि ईच अदर होगा, और 10-10 क्या 20-20 का ग्रुप होगा, 20-20 के बच्चों का मैम अमंग। among नहीं होगा, among is not at all reciprocal word। among में एक दूसरे वाली कहाँ बात आ रही है, जैसे each other में एक दूसरे वाली बात आ रही है। each other हम हमेशा 2 के लिए यूज करते हैं। Help each other.
नहीं, ईच अदर हम हमेशा दो के लिए यूज करते हैं, 2 पर्सन के लिए हम हमेशा ईच अदर यूज करते हैं। लेकिन जब ज्यादा लोग होते हैं तो इसमें हम लोग यूज करते हैं वन अनदर। ये एक वर्ड आप लोग सुने होंगे, वन अनदर, सुने हैं ना, वन अनदर। Yes, Yes. ma'am. So this word will be used in a large group. Means you all have to help one another to complete this project. जैसे आप लोगों को कभी क्लास में कुछ प्रोजेक्ट वर्क मिलता है तो वो ग्रुप में करना होता है, क्योंकि बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट होता है, तो सभी लोगों को एक दूसरे की हेल्प करनी होती है उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो यू ऑल 10 विल हेल्प वन अनदर टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। आई बात समझ में? Yes, ma'am. तो जब दो रहेंगे तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? Each other. और जब दो से ज्यादा रहेंगे तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? One another. One another. वेरी गुड। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन आप लोगों को समझ में आया? रेसिप्रोकल प्रोनाउन इज ऑलवेज यूज्ड टू शो द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ओके, Yes, ma'am. और ये जो आप लोग एक दूसरे की हेल्प करोगे दैट विल बी टोटली बेस्ड ऑन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। प्रोजेक्ट में कोई काम लिखने का कर लेगा, कोई डेकोरेट करने का काम कर लेगा, कोई उसको मटेरियल को खरीद कर लाने का काम कर लेगा, कोई उसे मिलाने का काम कर लेगा, कोई उस प्रोजेक्ट को बनाने का काम कर लेगा, असेंबल करने का काम कर लेगा। तो यू ऑल आर हेल्पिंग वन अनदर जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट रहता है तो, है ना? Yes, ma'am. Okay, so write down reciprocal pronoun dash. Reciprocal pronoun dash. देखिए, reciprocal pronoun is used. Reciprocal pronoun is used to show the mutual understanding. Reciprocal pronoun to show the mutual understanding. To show के बाद में The mutual understanding. म्यूचुअल की स्पेलिंग लिखिए MUTUAL। MUTUAL। To show the mutual understanding. To show the mutual understanding. Yes, ma'am. Yes, reciprocal pronoun is always used to show the mutual understanding. Full stop. Example में लिख लीजिए each other, one another, each other, one another, each other, one another, etc. one another, each other, one another. उसके बाद लिखिए। ET भी होगा। हाँ लिख सकते हैं each other, one another। मैम और भी एग्जाम्पल हो सकता है ना, आप और नहीं बता सकते? हाँ, क्यों नहीं बता सकते हैं? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैंने आप लोगों को चॉकलेट्स दिया है और मैंने मॉनिटर को चॉकलेट दे दिया है और बोला है कि आप लोग अपने में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे? यू ऑल हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दिस चॉकलेट अमंग योरसेल्फ, अमंग योरसेल्फ। आई बात समझ में? सिर्फ अमंग बोलेंगे तो नहीं होगा, सिर्फ अमंग बोलेंगे तो नहीं होगा। Yourself. योरसेल्फ जब हम बोल देंगे तो यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. ओके, अच्छा ये बताइए कि ये क्या कहते हैं, प्रोनाउन के जो 8 टाइप्स मैंने लिखवाए हैं, इसमें से कौन सा ऐसा प्रोनाउन है जिसमें अब आप लोगों को कंफ्यूजन है? ऐसा कोई प्रोनाउन है टाइप्स का जिसमें आपको कंफ्यूजन है, जो आप दोबारा से समझना चाह रहे हैं? मैम इंडेफिनिट प्रोनाउन। Yes, Indefinite pronoun. Ma'am, Okay.
इनडेफिनेट प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जहां कुछ भी डेफिनेट ना हो, जहां कुछ भी सर्टेन नहीं हो, पर्टिकुलर मतलब किसी भी चीज का एक पर्टिकुलर पक्का कुछ भी पता नहीं हो, सर्टेनिटी कहीं भी नहीं हो, कहीं भी कुछ भी डेफिनेट नहीं हो। जैसे मैंने बोला, जैसे मैं आपको बोलूंगी कि आप मुझे चावल दे दो खाने के लिए, ठीक है, तो मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि मुझे 4 चावल चाहिए। अगर रोटी की बात होगी तो आई कैन से आई विल टेक 4 चपाती, बट अगर चावल की बात हो तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि 4 चावल दे दीजिएगा। माइक ऑफ करिए जिनका माइक ऑन है, माइक जिनका ऑन है ऑफ करिए। यस, तो अगर मैं बोलूंगी कि मुझे 4 चावल दे दीजिए तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो मैं क्या बोलूंगी, मुझे थोड़ा सा चावल दे दीजिए। आई नीड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ राइस, मे आई हैव सम वाटर प्लीज। अगर हम बोलेंगे एक पानी दे दीजिए तो आपको नहीं समझ आएगा, तो हम बोलेंगे थोड़ा पानी मुझे मिल सकता है क्या, मे आई हैव सम वाटर प्लीज। तो जहां कुछ पानी मैंने मांगा है तो आप कुछ पानी दे सकते हो, कोई छोटा गिलास देगा, कोई बड़ा गिलास देगा, कोई कटोरा में ला कर देगा, कोई कप में ला करके देगा, तो सबकी अलग अलग क्वांटिटी हो जाएगी। तो जहां कुछ भी सर्टेन नहीं होता है दैट इज इनडेफिनेट प्रोनाउन। अगर मैं आपके क्लास में आऊं और आकर के बोलूं कि कोई एक मेरे साथ नीचे चलिए, एनी वन ऑफ यू कैन कम विथ मी, तो मैंने किसी के नाम को लेकर के डेफिनेट नहीं बोला है, मैंने किसी एक बच्चे को अपने साथ नीचे चलने के लिए बोला है कि मुझे कुछ काम है, दे विल एनीवन कैन हेल्प मी। तुम लोग कोई गिर जाता है तो बोलते हैं अरे कोई जाओ उसकी मदद कर दो, एनीवन कैन गो एंड हेल्प हिम और हर। अगर कोई गिर गया है या गिर गई है तो लोग क्या बोलते हैं, जो लोग दूर खड़े होते हैं वो नजदीक वाले को चिल्ला के बोलते हैं अरे कोई जाओ उसकी मदद करो, एनीवन ऑफ यू कैन गो एंड हेल्प हिम। तो जहां पे वो किसी को भी बोल रहा है, किसी का नाम लेके नहीं बोल रहा है कि हाँ मैंने ए को बोला है कि वो जाकर के डी की मदद करेगा, नहीं, उसने वहां पे खड़े जितने लोग हैं सभी को बोला है कि जाकर के जो भी लोग खड़े हैं नजदीक में जाइए, जाके मदद करिए। आ रही है बात समझ में? यस मैम। यस मैम। आ गया समझ में। हाँ, तो इनडेफिनेट प्रोनाउन अब सबको समझ में आ गया। अब बताइए, अब और कोई प्रोनाउन है ऐसा जो समझ में नहीं आया मैम है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मैम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। Demonstrative pronoun is that pronoun which is used to point out anything, this, that, these, those। बचपन में हम लोगों को सिखाया गया था, this is an apple, that is a chair, that all are star। तो this, that, these, those नजदीक के समान के लिए this, दूर के समान के लिए दो, that। और नजदीक में जब प्लूरल समान हो तो these, all these are my books। और दूर के समान है तो those are stars। दूर के समान के लिए प्लूरल है तो those, this, that, these, those। only 4 words will be used as demonstrative pronoun, this, that, these, those, and it is always used to indicate, to point out something। is that clear? Yes ma'am। Now next is reflexive pronoun। reflexive pronoun भी अभी किसी बच्चे ने पूछा। reflexive pronoun is the pronoun which shows the reflection। जो रिफ्लेक्शन शो करता है, रिफ्लेक्शन किसका शो करेगा, उस सेंटेंस में जो नाउन प्रेजेंट है उसका, which shows the reflection of the noun present in that sentence only। अगर वहां पे my है तो उसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा myself, अगर he है तो himself, she है तो herself, they है तो themselves, we है तो ourselves। आ रही है बात समझ में? you है तो yourself। सबको आया समझ में अच्छे से? यस मैम। यस मैम। Yes ma'am। Is there any more doubt? No ma'am। नो मैम। No ma'am। Oh, okay. So pronoun chapter is completed here. Now the next topic which we are going to start is either adverb or adjective। या तो adverb start करेंगे या adjective start करेंगे। See, there are 8 parts of speeches in the grammar। So the first one is noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, interjection, and conjunction। So we have to complete first all these 8 types of parts of speech, out of which we have already completed 2 types, noun and pronoun। Now the third one, whether we will start adverb or adjective। Okay, थर्ड हम लोग या फिर adverb या फिर adjective start करेंगे, ठीक है? यस मैम। Yes ma'am।
Okay, so that's it for today's class. No doubt, no? Is there any more doubt to anyone? No, ma'am. No, ma'am. Okay, then that's it for today's class. Thank you and have a nice day. Bye bye to all of you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am.